बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज पीएस कॉमर्स का सब्जेक्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसका थर्ड लेक्चर है। टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, राइज एंड फॉल इन सप्लाई। Number one is the extension and the contraction of supply. Extension and contraction means the variation in supply. If supply increases or decreases due to the change in price is called the extension or the contraction of supply. यानी अगर सप्लाई में रसद में कीमत की वजह से तब्दीली होती है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन कहते हैं इजाफे को, सप्लाई का बढ़ जाना। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस मोर क्वांटिटी इज़ ऑफर्ड फॉर द सेल। जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है, उसकी रसद में इजाफा हो जाता है, उसकी एक्सटेंशन हो जाती है, एंड दिस इज़ नोन एज द एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। And in the simple word we can say that when the price of the commodity increases, its quantity supply also increases, and this increase in supply due to the rise in price is called the extension of supply. Now we can explain the extension of supply with the help of the following schedule. When the price of rice is 10 rupees per kg, then quantity of supply is at 100 kg, and price rises from 10 to 20 rupees per kg, then supply also increases from 100 to 200 kg in the market. When price also increases from 20 to 30 rupees per kg, then supply also increases from 200 to 300 kilograms in the market. And we can explain the extension of supply with the help of the following diagram. We show the prices on OY and supply quantity of supply on OX. In the above diagram, we have measured the quantity of supply on OX and price on OY, and with the help of the schedule we get the SS curve. That is also called the supply curve, which shows that the increase in supply is due to the rise in price, and it is known as the extension of supply. ये दो चीज़ें थी, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों प्राइस की वजह से होती हैं। नाउ द कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी फॉल्स लेस क्वांटिटी इन द ऑफर्ड फॉर द सेल। जैसे ही किसी चीज़ की कीमत में कमी होती है, उसकी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है, सप्लायर कम लेकर आता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द प्राइस ऑफ एनी क्वांटिटी डिक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस, and this decrease in quantity of supply due to the fall in price is known as the contraction of supply. Now we can explain the contraction of supply with the help of the following schedule. When the price of rice is 30 rupees per kg, there are the quantity of supply 300 kg in the market. When price decreases from 30 to 20 rupees per kg, then total supply in the market is 200 per kg, 200 kilograms total supply. That it reduces from 300 to 200. When price also decreases from 20 to 10 rupees per kg, the price of rice, then total supply will be in the market 100 kilogram, and that is called the contraction of supply. जैसे कीमत कम होती है, सप्लाई भी कम हो जाती है. Now we can explain the contraction of supply with the help of the following diagram. We plotted the price on OY and the quantity of supply on OX. In the above diagram we plotted the QS on OY, the QS on OX and the price on OY, and with the help of the schedule we get the supply curve, which shows the decrease in supply due to the fall in price, and that is also called the contraction of supply. डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि प्राइस की वजह से जो कमी होती है सप्लाई में, जब प्राइस कम होती है सप्लाई कम हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन, एंड जब कीमत ज़्यादा होती है तो सप्लाई भी ज़्यादा होती है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन. देयर इज़ आल्सो द राइज एंड द फॉल इन सप्लाई. If the supply of commodity changes due to any other factor rather than price, कीमत के अलावा सप्लाई में इजाफा हो जाए और कीमत वही रहे, दैट इज़ कॉल्ड द राइज इन सप्लाई. और अगर प्राइस भी वही रहती है लेकिन सप्लाई फिर कम हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द फॉल इन प्राइस. यानी प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर ऐसा होता है जिसकी वजह से सप्लाई चेंज हो जाती है, उसमें इजाफा होता है या कमी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द राइज एंड द फॉल इन सप्लाई. नंबर वन इज़ द राइज इन सप्लाई. When the supply of a commodity goes up due to the price but not due to the other factor. When the supply of commodity goes up not due to the price but due to the other factor, यानी कीमत की वजह से ना हो, किसी और फैक्टर, यानी पॉपुलेशन
की वजह से हो जाती है, टेस्ट की वजह से हो जाती है, लेटेस्ट टेक्निक्स की वजह से प्रोडक्शन चेंज हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड द राइज इन सप्लाई. When supply increases, the supply curve shifts from one place to another place, and this rise in supply can be explained with the two schedules and the diagram. इसकी दो सूरतें होती हैं. देखें, प्राइस वही रही, शेड्यूल के ज़रिए बताया कि प्राइस जो है राइस की वो, या ऑरेंज की हम ले लेते हैं मिसाल इसमें, कि 10 रुपीज़ पर केजी होती है. पहले 10 रुपीज़ प्राइस 10 रुपीज़ है, लेकिन ऑरेंज की जो है सप्लाई बढ़कर मार्केट में 100 थी, वहाँ से 200 और फिर 300 हो जाती है. इसको हमने डायग्राम के ज़रिए भी जाहिर किया. पहले जो था उसका ख़त जो था वो S1 था, फिर S2 हो गया, फिर S3 हो गया, यानी सप्लाई में इजाफा हो गया. बट दिस इज़ नॉट ड्यू टू द प्राइस, बट दिस इज अदर फैक्टर रेदर देन प्राइस, दैट इज़ कॉल्ड द राइज इन प्राइस. इसी तरीके से हम कहते हैं कि इसकी दूसरी सूरत हाल ये होती है fall in supply. When the supply of a commodity goes down due to the price, but due to the other factor. Goes down not due to price. कीमत की वजह से नहीं, किसी और वजह से जब उसमें सप्लाई में कमी हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द फॉल इन सप्लाई. और इसकी भी सूरत हाल जो पहली है वो ये है कि कीमत 10 रुपये पर किलोग्राम थी और क्वांटिटी सप्लाई 300 थी. कीमत वो रही, कम होकर 200 हुई, कीमत वही है, लेकिन इसकी सप्लाई कम होकर 100 रुपये, कुल सप्लाई जो है 100 किलोग्राम हो जाती है. और इसको शेड्यूल के ज़रिए जाहिर किया. पहले कर्व जो था इसका, जो फर्स्ट जो था कर्व इसका 300 पर था, S1 था, फिर ये कम होकर S2 हो गया, फिर ये कम होकर S3 हो गया, यानी सप्लाई में कमी हुई, लेकिन नॉट ड्यू टू द प्राइस बट द रेदर देन प्राइस, दैट इज़ कॉल्ड द फॉल इन सप्लाई. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था सप्लाई का, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में आपसे कि सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई, एंड इसकी एक्सप्लेनेशन है शेड्यूल और डायग्राम से. और उसके बाद हमने देखा कि इसमें एक्सटेंशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है, जो ड्यू टू प्राइस होता है. और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इसमें कि राइज एंड फॉल इन सप्लाई क्या है, जो रेदर देन प्राइस की वजह से होता है, यानी कीमत की वजह से ना हो, कोई और फैक्टर हो उसकी वजह से हो. इसमें जो चीज़ आपने इसको देखिएगा, इसी जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, दोबारा आपको डिस्कस करता हूँ कि सप्लाई और सप्लाई की डेफिनेशन, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल एंड डायग्राम. What is the extension and the contraction of supply, and what is the rise and the fall in supply, and in तीनों चारों टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड द डायग्राम विद द एक्सप्लेनेशन. स्टूडेंट्स, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इसको आप देखिएगा और इसमें जो चीज़ आपको ना समझ आए हम कल इसको फिर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसको स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.